You are watching Design Jazz. Do subscribe my channel and like the video. Press the bell icon to get notified for the upcoming videos regarding design and installation of solar PV system. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य। आप देख रहे हैं डिज़ाइन जैज़। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। अगर जिन लोग को पता है कि सोलर सिस्टम होता क्या है तो वो बनाने चाहते हैं। तो सोलर सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट पैनल होता है, डिफरेंट इन्वर्टर होता है, वो सब आप पूछते हो कि इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, हम पैनल क्यों लगाते हैं, अगर भी पैनल है तो कौन सा पैनल है। मेनी ऑफ यूर आस्किंग व्हाट आर द डिफरेंट पैनल्स आर देयर, मे बी मोनोक्रिस्टलाइन, मे बी पॉलीक्रिस्टलाइन। सो व्हिच ऑफ द पैनल आजकल हर कोई बोलता है कि सोलर बाइफेशियल मॉड्यूल लगा देंगे। सो ये सोलर बाइफेशियल मॉड्यूल जो है एक नया टेक्नोलॉजी उभर कर आया है इंडिया में। ये तो पहले से था पर यहाँ पे इंडिया में पहली बार आया है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सोलर बाइफेशियल मॉड्यूल हम क्यों लगाएंगे और ये चीज़ होता क्या है, अगर भी लगाएंगे तो इसका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। सो ये सब हम पता करेंगे आज टेक्नोलॉजी के बारे में, उसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में लगाना चाहिए, क्या इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, उससे पहले बात करेंगे उसका टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं और इस तरह नया टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। सो बिना देर कीजिए चलिए शुरू करते हैं। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सोलर बाइफेशियल मॉड्यूल इज हाफ कट सेल्स, IBC technology, PERC technology, then so and so. Two side absorptions of the light, two side energy creations. So क्या मैं बोल जा रहा हूँ, हाफ कट सेल्स, PERC टेक्नोलॉजी, IBC सेल्स, ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी का क्या होता है, ये जो फील फैक्टर है कि सोलर मॉड्यूल का वो कैसे इंक्रीज होता है। यू नो, long days ago the solar panels efficiency was 15%, but now it has been increased to 20% or more than 20%. So ये जो फील फैक्टर होता है क्या है, ये जो मतलब जो मॉड्यूल का एरिया होता है वो कैसे चेंज होता है, ये दीज आर ऑल कोरिलेटेड थिंग्स। अगर ये बात आपको पता नहीं, PERC होता क्या है, हाफ कट सेल्स होता क्या है, टू साइड लाइट ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, अल्वेडो क्या होता है, देन बात कर लेते हैं। Here how the bifacial modules looks like. Every bifacial module they do work on the passivated, emitter and real cell technology. Both the front and the back side of the PV module are being passivated textures so that the sunlight will be absorbed in both passivated front and back side as well. So here the silicon cell will be sandwiched between EVA film and the glass. The front glass will be for the direct sunlight and the rear glass will be for the reflected sunlight. In order to get the maximum efficiency from the PV module, the bifacial module has to be placed by some certain tilt angle so that the incident ray can be from direct sunlight and can be from reflected ground, so that here the maximum energy can be generated from both front side as well as the back side. So rating and the efficiency of the PV module will be increased. As you see, the bifacial dual glass monocrystalline module, the each PV module watt peak varies from minimum 475 to 505 watt peak. Definitely, if ever the P max of each PV module will be increased, and if you apply the efficiency formula, then definitely the efficiency will be also increased, that is 19.7 to 21. As you see, the number of cells has been increased to 150 cells. Initially the 16 number of cells and 72 number of cells, each cell is now being cut into half, that is it will be doubled. That's why it is called as half cut cells. And if ever the number of cells will be increased, definitely the current will be shared and the current will be decreased. If the current will be decreased, definitely the I square R loss, the heat loss will be less, and if ever the heat loss will be less, definitely the energy efficiency will be more and the reliability of the module will be definitely good. प्रो के बारे में तो बात कर ली, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं उसके कॉन्स के बारे में। ये जो बाइफेशियल मॉड्यूल होता है तो ये दोनों तरफ इसका ग्लास होता है। तो पहले जो मॉड्यूल आता था उसके ऊपर में बस सिलिकॉन आता था, उसका पीछे कोई ग्लास नहीं था। तो अभी जो बाइफेशियल मॉड्यूल आ रहा है तो उसके पीछे भी एक ग्लास आ रहा है। तो दोनों तरफ अगर ग्लास है, दोनों तरफ में अगर रेडिएशन ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो मतलब इसका जो मॉड्यूल का वेट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। आप मार करोगे जो पहले जो मॉड्यूल आता था, मोनोक्रिस्टलाइन हो या पॉलीक्रिस्टलाइन हो, और जो भी टेक्नोलॉजी था उसका वेट 20 किलो से लेकर 22-23 इस तरह होता था। तो व्हाट एवर द बाइफेशियल मॉड्यूल इज राइट नाउ इट इज कमिंग इन द मार्केट, दिस इज अराउंड 30 किलो।
तो सोच रहे हो 30 किलो एक मॉड्यूल का साइज़, अगर एक मॉड्यूल का साइज़ 30 किलो हो रहा है तो bunch of modules require connecting, definitely the mounting structures has to be very much strong enough. अगर माउंटिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, माउंटिंग स्ट्रक्चर को अगर बहुत तगड़ा नहीं बनेगा, तब मतलब ये यहाँ पे ये संभल नहीं पाएगा ये मॉड्यूल को। तो माउंटिंग स्ट्रक्चर कॉस्ट विल बी डेफिनेटली हाई, इट विल बी इंक्रीज, ये बढ़ेगा भाई, क्योंकि एक मॉड्यूल का 30 किलो है तो इतना सारा मॉड्यूल लगा रहे हो, तो उसका तो माउंटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला लगा रहे थे उसको लगा दोगे, नहीं, माउंटिंग स्ट्रक्चर्स कॉस्ट डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीज्ड। सोचने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी कॉन्स के बारे में बोल देते हैं। दिस इज व्हाट अ वेरी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग टू यू। द bifacial मॉड्यूल्स कैन ओनली वर्क whenever the albedo is there, whenever the reflection is there। अगर रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन करने के लिए, रिफ्लेक्शन बनाने के लिए द bifacial मॉड्यूल हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर, दैट इज़ व्हाट टिल्ट एंगल। तो टिल्ट एंगल जो होता है ना, उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। एंड यू नो एज द सोलर एक्सपर्ट्स, बाईफेशियल मॉड्यूल लगाने के लिए जो उसको जो मतलब उसका जो एंगल होता है, मे बी 30 डिग्री, मे बी 25 डिग्री, मे बी 40 डिग्री, वट एवर द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, दैट लोकेशन एंगल यू हैव टू मेंटेन। अगर ये एंगल यहाँ पे ये मेंटेन नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा भैया। अगर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो ये इसका बाईफेशियल मॉड्यूल का कुछ लगाने का काम ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता यार। तो मतलब यू हैव टू क्रिएट द albedo, you have to place the modules in such a manner that the reflection will be coming। and ये कैसे बनेगा? अगर ये एंगल यहाँ पे मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली इफ एवर दिस एंगल हैज़ टू बी मेंटेन, अगर ये एंगल 30 डिग्री प्रॉपर एंगल में रहता है जो लैटिट्यूड एंगल होता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंटेन द इच इंटर एरे स्पेसिंग। इंटर एरे स्पेसिंग जो होता है, जो एरे लगता है उसका जो इंटर एरे स्पेसिंग है, वो इंटर एरे स्पेसिंग बढ़ जाएगा यार। Definitely that the inter-array spacing you have to that is properly it has to be maintained। तो ये अगर inter-array spacing ज़्यादा जा रहा है तो definitely here you cannot use more number of modules set। रही बात है अभी कंट्राडिक्टरी, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे जो कन्वेंशनल मॉड्यूल है, तो ये टिल्ट एंगल जो होता है 30 डिग्री, इसको भी अगर 30 डिग्री ना लगा के हम 15 डिग्री में लगा देंगे, नॉर्मल मॉड्यूल के बारे में बोल रहा हूँ, जो मोनोक्रिस्टलाइन है या पॉलीक्रिस्टलाइन है, तो इसका शेडिंग कम हो जाएगा। अगर शेडिंग कम हो जाएगा तो इंटर एरे स्पेसिंग भी कम हो जाएगा। अगर इंटर एरे स्पेसिंग कम हो जाएगा तो हम ज़्यादा मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा मॉड्यूल लगा सकते हैं तभी हम ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है भाई, क्यों हम इसको लेंगे? सोचने वाली बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी तीसरी कॉन्स की। तो तीसरी कॉन्स क्या है? ये जो कन्वेंशनल मॉड्यूल है, मोनोक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टलाइन, जो बाईफेशियल नहीं है, तो उसको हम क्या मतलब जो कोई भी एंगल में हम लगा सकते हैं। अगर जो कोई भी एंगल में लगा सकते हैं, अगर इफ दिस गैप इज डिक्रीज्ड, डेफिनेटली फॉर द मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, कन्वेंशनल मॉड्यूल जो पहले आता था, वो जो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, तो अगर ये गैप कम हो जा रहा है तो विंड प्रेशर विल बी लेस। सो देन डेफिनेटली जो मतलब आपका स्टॉर्म प्रोन एरियाज है, जहाँ पे विंड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे मतलब ये जो मतलब चक्रवात ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल घट जाता है कन्वेंशनल मॉड्यूल जो आजकल लगाते हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला। सो देयर विल बी लेस रिस्क ऑफ ऑल दिस मॉड्यूल्स टू बी डिसमाउंटेड। वो डैमेज नहीं होगा क्योंकि विंड प्रेशर घट जा रहा है। उसको कन्वेंशनल मॉड्यूल है, उसका एंगल हम घटा दिए तो ये लगा सकते हो। अब बात करते हैं बाईफेशियल की। अगर बाईफेशियल मॉड्यूल लगा रहे हो तो दिस एंगल हैज़ टू बी मेंटेन। ये एंगल मेंटेन नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बार बार बोल चुका हूँ। तो एंगल यहाँ पे है तो मतलब डेफिनेटली विंड प्रेशर विल बी मोर। इफ विंड प्रेशर विल बी मोर देन देयर विल बी मोर चांस गेटिंग अफेक्टेड इन केस ऑफ स्टॉर्म, राइट। तो मतलब ये सब चीज़ सोचने वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको अडॉप्ट कर देंगे, मतलब अडॉप्ट तो करेंगे बिकॉज इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये तो हम अडॉप्ट करेंगे बिल्कुल भी करेंगे, पर you have to analyze because this is for the new technology, whether it is feasible or not. If ever it is feasible, if it is not feasible, then what are the cons? If the cons are there, and how the cons will be modified, so that how the cons will be rectified, so that we will get more energy. That is a matter to think, and that is a matter to adopt the change also. मतलब ये जो चेंज है इसको हम अडॉप्ट भी करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ हमको इसको
सोचना पड़ेगा बहुत सारी बात कि ये चीज़ कैसा होता है, क्या होता है, इसका मतलब डिफरेंट प्रो को लेना पड़ेगा, डिफरेंट कॉन्स को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 3G फ़ोन लगा रहे हैं तो अभी 4G फ़ोन आ गया तो 4G फ़ोन लगा देंगे। अरे 4G और 3G के क्या डिफरेंस है उसको हमको पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 4G फ़ोन लगा रहे हैं अभी 6G आएगा तो 6G एक्चुअली क्या होता है, क्या मोबाइल मेरे को सपोर्ट करता है ये 6G टेक्नोलॉजी, हमको तो पता करना पड़ेगा कि नहीं। सो दैट थिंग यू हैव टू कंसिडर। बस उतना ही। जाने से पहले और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, कई सारे लोग होते हैं जो ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है उसका प्रॉपर साइजिंग कर नहीं पाते हैं। कितना मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगता है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगता है, प्रॉपर PBRA साइजिंग अगर नहीं हो पाएगा तो सिस्टम इज़ गोइंग टू फेल। सो इफ़ यू वांट टू नो द मैनुअल कैलकुलेशंस of the PV modules, how it is connected in series and how it is connected in parallel, the proper sizing I have given a video in the I button. You check in the I button and you can find how the proper sizing will be done. And you know, many of the people also asking for the software calculations, because whenever you tell you are an expert and a solar expert, that means you should have the knowledge in both manual calculations, both design and also in the software by means of the softwares. So you should have the knowledge in the software also. So many of the softwares are there, PVSys, PVSol. So if you want to design the PV system, on-grid system, off-grid system, hybrid system, concentrated PV system, building integrated PV system, then you can go for the software analysis also in the I button. Also I have given a video, those who can do it, then you can do it. You follow this process and get the knowledge in the software also, right? So this much. So मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, लाइक कर देना है वीडियो को, शेयर कर देना है वीडियो को। लेट द नॉलेज बी स्प्रेडेड, फैला दो बस। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, वंदे मातरम। टिल देन गुड बाय।